गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं आपको? ओके। In last class we have done question number 3.5. In class we have done question first and question second of exercise 3.5. Today I am going to solve question third. Question third, find the value of k for which the following equations have real and distinct root. For real and distinct root, we know that d is always greater than 0. हमने इसके पहले क्वेश्चन सेकंड किया था. इन क्वेश्चन सेकंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल. इन दिस केस d is equal to 0. And in question third, we have given the following equations have real and distinct root. Real and distinct root, this means roots are d is greater than 0. And we have to find out the value of k. So in question third, question number first, kx square plus 2x plus 1 and this is equal to 0. kx square plus 2x plus 1 is equal to 0. First we have to find out the value of d. We know that d is equal to b square minus 4ac. एक बार हम earlier we have write down a is equal to k, b is equal to 2 and c is equal to 1. Now this is equal to 2 का whole square minus 4 into k into 1 and this is equal to 4 minus 4k. For real and distinct roots, d is greater than 0 और 4 minus 4k greater than 0. 4 minus 4k greater than 0. You have seen 4 is common. 1 minus k greater than 0. 4 is in the multiplication. So when it's go to the right hand side, then this means 1 minus k greater than 0. अब देखो यहाँ पे children 1 minus k greater than 0. This is also write down in this form. Same we have assumed this is the sign of similar. This means कि k की वैल्यू जो है और k is less than 1 and this is our answer. I am explaining this. See here b square minus 4ac and this is a is equal to k, b is equal to 2 and c is equal to 1 and d is equal to b square minus 4ac 2 whole square minus 4k into 1. This is 4 minus 4k. For real and distinct root, always d is greater than 0. Therefore, 4 minus 4k greater than 0. So, 4 is common, 1 minus k greater than 0 and 1 minus k greater than 0. आप यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हो. k की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब वो 1 से माइनस हो तो वो 0 के बड़ा हो. तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, अगर k की गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, सी हियर, इफ k is greater than 1 then the value is negative and negative value is always less than 0. या आप इसको सिंपली इक्वल मानते हुए बना सकते हो. माइनस के इधर चला गया बट हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो रहा है.
So 1 is greater than k. This means k is less than 1. Is it clear? Anyone have any problem? Is it clear, children? Anyone have any problem? Okay. Please write down this. Then I am solving question number 3rd. सेकेंड इजी है, सेकेंड आप खुद कर लेना और मैं वापस एक थर्ड बता दे रही हूँ आपको. प्लीज राइट डाउन दिस. ओके. चिल्ड्रेन आप लोग ही बताओ, थर्ड का सेकंड बताऊं या थर्ड बता दूं? कौन सा बता दूं? थर्ड का सेकंड बताऊं या थर्ड बताऊं? कौन सा बताऊं? मेरे सेकंड इजी है, सिंगल है. थर्ड बता देती हूँ. थर्ड का थर्ड. और सेम इसी की तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा. अब आ जाए हम थर्ड के थर्ड पे. थर्ड का थर्ड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9. एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, मैं थर्ड ही बता रही हूँ, मनोज कनिका. दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ थर्ड एंड दिस इज के स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ पर ए हमारा 1 है, बी हमारा माइनस के है और सी हमारा 9 है. अगेन हम डी फाइंड करेंगे. बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 and this is equal to k square minus 36 and this is equal to k square minus 36 for real and distinct root. So this is greater than 0, b is greater than 0 और k square minus 36 greater than 0 और k का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और k प्लस 6 k माइनस 6 ग्रेटर देन 0. ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं किया मैंने. यहाँ पर ये तो हमारा d आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac. फिर मैं इसको यहाँ लिखती k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0. k का होल स्क्वायर कर दी. अगर मैं चाहती तो उस ओर भी ले जा सकती थी, k स्क्वायर ग्रेटर देन 36 और k की वैल्यू ग्रेटर देन प्लस माइनस 6. वहां से भी हम फाइंड कर सकते थे, बट मैं इधर ही इसको फैक्टराइज कर दी और ये हमारा यहाँ पे टर्म मिल गया. अब यहाँ पे देखो किशन, व्हाट्स नो? मैम नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो? आई कांट अंडरस्टैंड. What is the meaning of no? अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और k माइनस 6 ग्रेटर देन 0. अब देखो यहाँ पे बच्चों, अब ध्यान से इसको समझना. जैसे यहाँ देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर तो ये बहुत क्लियर है कि k इज ग्रेटर, ये अगर आप देखते हो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 तो देखो इसका मतलब हुआ कि k को 6 से बड़ा होना है. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. अगर k हमारा 6 से बड़ा हुआ, अब यहाँ पर आ जाओ, दो इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन नहीं है. अगर k हमारा 6 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा यहाँ एक सिंगल से नहीं बनेगा. अगर k 6 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और होल वैल्यू जो हमारी होगी, होल वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. तो दिस इज करेक्ट.
लेकिन यहाँ पे हम अगर इसको लिखेंगे सेम टू सेम के इज ग्रेटर देन -6 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होना चाहिए के इज लेस देन -6। अब ये समझना क्यों, ये -6 से छोटा है। अब देखो ये -6 से छोटा है, अगर ये -6 से छोटा है के तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। मान लो -6 से छोटा मैं एक वैल्यू लेती हूँ समझाने के लिए, के इज -7 तो -7 ले ली तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया, ये वाला पार्ट हमारा आ गया -1 और ये वाला पार्ट अगर मैं -7 लेती हूँ तो -7 और -6 मिलकर हो गया -13 और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हो और लिखते हो के इज ग्रेटर देन -6 तो -6 से बड़ा नहीं है बल्कि के को -6 से छोटा होना है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक के की हो गई, तो रेंज जो हो गई के की रेंज जो है -6 से लेकर कर 6, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 6, -6 से लेकर कर लेस देन -6 मतलब -5। इसकी जो रेंज है -6 से 6 के बीच में, -6 से 6 के बीच में नहीं है, मतलब 6 से बड़े सारे नंबर आएंगे और -6 से छोटे सारे नंबर आएंगे, उन सारे के लिए ये एप्लीकेबल है। सो के इज लेस देन -6 एंड के इज ग्रेटर देन 6। एवरीवन गॉट इट? और रिपीट करूं, वापस से एक बार बताऊं, सबको समझ में आ गया या फिर से एक बार बताऊं? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, देखो यहां तक तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac निकल गया हमारा। अब बी स्क्वायर -4ac रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होगा, 0 से बड़ा। तो हमने लिख दिया के स्क्वायर -36 ग्रेटर देन 0। सिंपल सॉल्व की, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। k+6 k-6 ग्रेटर देन 0, k+6 k-6 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये मल्टीप्लाई है चिल्ड्रन, अगर एक टर्म नेगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा टर्म 0 से बड़ा नहीं होगा। हमें दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव आ जाए, देखो या तो दोनों पॉजिटिव आ जाए तो भी मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, या अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तो भी मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस हो जाएगा और एक पॉजिटिव माइनस, तो ये दोनों केसेस नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी नहीं होती बल्कि वो 0 से छोटी होती है। क्लियर? मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने में या तो मुझे दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आए या तो दोनों वैल्यू मुझे नेगेटिव में मिले। तो अगर आप देखो यहाँ पर इस केस पर पहले देखो k-6 ग्रेटर देन 0, तो सिंपली k ग्रेटर देन 6। अगर k 6 से बड़ा है तो अगर k 6 से बड़ा है तो दोनों केस में ये पॉजिटिव आ गया। इफ k इज ग्रेटर देन 6 देन बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स एंड रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। इन सेकेंड केस अगर हम यहाँ पे लिख देते k बड़ा है, k is greater than -6, तो k -6 से बड़ा है, तो -6 से बड़े नंबर कौन से हैं, -6 से -7 एंड दिस। तो अगर सपोज करो -6 से बड़ा मैं -5 ले लेती और -5 + 6 लेती तो ये नंबर मेरा पॉजिटिव का बना जाता, तो एक पॉजिटिव हो जाता और एक नेगेटिव हो जाता। इसलिए यहाँ पर ये k लेस देन -6, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई, k की रेंज है ये -6 से छोटा होना चाहिए और 6 से बड़ा होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, क्लियर? प्लीज नोट डाउन इट। इसे नोट डाउन करो, आप थर्ड का सेकंड बना लेना। और क्वेश्चन जो फोर्थ है ये भी बिल्कुल सेम है, फोर्थ भी सेम है। अब मैं आपको फिफ्थ बताऊंगी।
ओके, देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ में सिर्फ लेस देन 0 कर देना। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। बहुत इजी है, सब कुछ वही करना, केवल ग्रेटर की जगह लेस कर लेना। और बच्चों जब भी लेस करना और अगर सिंगल टर्म आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे आ गया सपोज करो k-3 लेस देन 0 और एक बार आ गया k-3 ग्रेटर देन 0। अब देखो इस केस में आपको पता है ना कि k को 3 से क्या होना है, बड़ा होना है। अगर k 3 से बड़ा रहेगा तो सारे वैल्यू जो होंगे 0 से बड़े होंगे, लेकिन k-3 छोटा है 0 से, तो इस केस में k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 से लेस होनी चाहिए। 3 से जब k लेस होगा, जैसे सपोज करो यहाँ मैं 2 रख दी तो 2 - 3 - 1, तो ये आप थोड़ा सा इसमें सिर्फ इक्वल नहीं चलता। अगर सिंगल है तब तो आप इक्वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको कर लो k इज लेस देन 3 और यहाँ कर लो k इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे तो ये काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल जो इक्वल की साइन लगाते हो आप इक्वल की साइन लगा के बना लेना। लेकिन जब इस तरह से टर्म हो k+3 k-3 ग्रेटर देन 0, देन आप दोनों को ध्यान रखना कि एक बार दोनों पॉजिटिव आने चाहिए और एक बार दोनों नेगेटिव आने चाहिए। तो इसको ब्रेन में रखते हुए हमेशा माइंड में बनाना, वरना अगर आप यहाँ पर देखो इक्वेट करोगे तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट आ जाएगा k इज ग्रेटर देन 3, लेकिन ये वाले पार्ट में हमेशा k जो है वो लेस देन -3 होना चाहिए। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फोर्थ क्वेश्चन में इमेजिनरी है तो वहां पर आप लेस देन 0 लगा देना, बाकी सब प्रोसेस सेम चलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मेरे पास यहाँ इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन बड़ा है, b - c x स्क्वायर प्लस c - ax और प्लस a - b इक्वल टू 0। अगेन वी हैव चेक द इक्वेशन। द इक्वेशन इज b - c x स्क्वायर प्लस c - ax प्लस a - b 0। इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, मतलब d हमारा 0 के इक्वल है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है मुझे, 2b इज इक्वल टू a+c। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore d is equal to 0 and we have to prove this 2b is equal to a plus c। अब यहाँ से वापस हम d निकालें। देखो मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास b - c। b क्या है मेरे पास, b मेरे पास है c - a और c क्या है, c मेरे पास है a - b। ये पहले हमेशा लिख देना ताकि आपका मिस्टेक ना हो। अब हम d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b क्या है हमारा, c - a का होल स्क्वायर -4, a की जगह क्या आएगा b - c और c की जगह क्या आएगा a - b। अभी मैं लास्ट में इसको 0 के इक्वल करूंगी, अभी मैं सॉल्व करती हूँ। देखो ये आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। मैं इसको साइड में लिख रही हूँ, बीच में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। अब -4 करते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ab -b स्क्वायर -ac और प्लस bc, और अब इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हमारा हो गया c स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, अब ब्रैकेट ओपन करती हूँ, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 4bc। अब देखिए एक जैसा कोई टर्म है तो ये और ये टर्म एक जैसा है, इसको हम एक जगह कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4ac। ठीक है ना, इसको मैं एक जगह कर ली, बाद में इसको ब्रैकेट लगाऊंगी तो फिर साइन चेंज करना होगा। अब देखो यहाँ पे इसको रहने देते हैं क्योंकि ये 2b का होल स्क्वायर है, इसके अलावा मेरे पास ये और ये बच रहा है, इनको मैं एक जगह लिख लेती हूँ, माइनस 4ab माइनस 4bc और प्लस 4b। कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये पूरा एक है। और देखो ये एक आइडेंटिटी बन रहा है हमारा, ठीक है ना। बेटा 2ac माइनस का ही है, ये माइनस 2ac है, और ये वाला जो पार्ट है देखो ab और फिर ab फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ac, लेकिन बाहर साइन माइनस की है, तो जब माइनस की साइन हटेगी तो सारे साइन हमारे क्या हो जाएंगे, साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, c प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा c प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इधर देखो, यहाँ पे इन दोनों में मैं क्या करती हूँ, ये क्या है देखो, ये है 2b का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या है हमारा 2b का होल स्क्वायर। अब इनमें देखो माइनस बाहर रखती हूँ और कॉमन में मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ कॉमन में मैं लग सकती हूँ 4 और क्या ले सकती हूँ b, तो यहाँ क्या बच गया a और ये साइन माइनस से चेंज होकर हो गई बच्चों प्लस। अब देखो अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2b लिख सकते हो ना, तो बन गया 2ab और ये है हमारा a। आप इसको आगे लिखो c प्लस ए या a प्लस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। सोनू आपको समझ में आ गया ना, माइनस 2ac तो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 4ac है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। अब देखो हमारा जो है ये रूट जो है d0 के इक्वल है, मैं सिर्फ क्वेश्चन रब कर रही हूँ, तो d0 के इक्वल है तो लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने वैल्यू निकाला है c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो होल स्क्वायर 0 के इक्वल है तो सिंगल भी 0 के इक्वल होगा, और c प्लस ए माइनस 2b दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारा आ गया ना, यही तो प्रूफ करना था, और 2b इज इक्वल टू, इसको c प्लस ए को a प्लस सी, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आ गया आपको समझ में सबको। ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसको एक जगह इकट्ठे किया और आइडेंटिटी के फॉर्मेट में हुआ, और किसको देखते हुए की, ये जो प्रूफ था ना इस प्रूफ को देखते हुए की। जब इस प्रूफ को देखते हुए हमें करना पड़ता है, देखो मैं इसको ध्यान में रखी कि मुझे a प्लस बी सी चाहिए और b चाहिए, इसलिए मैं a प्लस सी और मैं यहाँ पर b। अंशिका प्लीज रिपीट। बेटा ये सिंपल है, देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, d हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सबकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, सबकी वैल्यू पुट कर दी। और अब सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी को मैंने ब्रेक किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर कुछ नहीं की, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दी, बी ए बी स्क्वायर सी ए और सी बी, माइनस प्लस को ध्यान रखते हुए मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दी, यहाँ माइनस का साइन था, सबके साइन चेंज हो गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करते हुए मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर दिया है। ओके चिल्ड्रन, अब आप इसे कॉपी फटाफट करें, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। ये पॉलिनोमियल पढ़ा है, अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ। इजी है, जो हमने छोटी क्लासेस में किया था वही है। हम यहाँ सिर्फ पॉलिनोमियल को सीखेंगे और फैक्टराइज कर कर बनाएंगे। Done children? अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गया। हमने ये किनसे सीख रहे थे हम लोग? ये फैक्टराइजेशन का हमारा थर्ड मेथड था, और जिसे हम कहते हैं आचार्य श्रीधर मेथड, एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बोथ आर द सेम, दिस नेम इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड बिकॉज we have firstly find out the discriminant d, and according to this then we decide whether the roots are possible or not. इनके मैंने आपको सब कुछ सिखाया, नेचर ऑफ रूट सिखाई, वैल्यू फाइंड आउट करना आपको सिखाया, उसके अर्लियर मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई एंड कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज मेथड सिखाई। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी क्लास में आपको काम आएगा। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है वो हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ वही है जो हम बचपन में पढ़ते थे, ठीक है ना बेटा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, वही एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है ना? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दोनों में जो कॉमन होता है उस कॉमन को लिखते हैं, और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों के जो हाईएस्ट फैक्टर है उनको करते हैं। अब ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट है, सपोज करो एक यूएक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है और एक वीएक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल्स हैं। दोनों की अगर हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करें तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है। इन दोनों नंबरों का जो पॉलिनोमियल्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। If we have multiplied the both polynomial or product of both polynomial is equal to LCM into HCF of these two polynomials। अगर दो polynomials है मेरे पास और उन दोनों polynomials का अगर हम LCM और HCF फाइंड करते हैं तो एक रिलेशन यहाँ पे बनता है कि उन दोनों polynomials को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, और इधर अगर हम एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का भी प्रोडक्ट निकाले तो ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होंगे। अगर आप सही एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो, जैसे मैथ्स में आप डिवीजन को चेक करते हो, उसी तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ को भी चेक कर सकते हो और चेक करके बना सकते हो। आपको पता है ना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों के कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, और एलसीएम का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर जो है उस हाईएस्ट पावर का हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो आएगा यहाँ पे।
अब देखो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, ये है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और दूसरा जो हमारा है ये है एंड 27 x4 y square and z square. Again check the question. 24 x square yz and 27 x4 y square z square. अब देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था, न्यूमरल का अलग फैक्टराइजेशन और वेरिएबल का अलग फैक्टराइजेशन। न्यूमरल को अलग से फैक्टराइज करेंगे और जो हमारे पास ये जो हमारे वेरिएबल हैं उनको हम अलग से फैक्टराइज करेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट। बच्चों अब बोर्ड क्लियर आ रहा है? वंशिका, वंशिका इज इट क्लियर? वंशिका फास्ट गिव मी रिप्लाई, इज इट क्लियर? यस। अब देखो 24 को पहले ब्रेक करो तो 24 क्या होता है? ओके सोनू, पहले आ रहा था ओके। अब देखो पहले 24 को क्लियर करो तो 24 किसका मल्टीप्लाई है आपको पता है ना? ये 6 इंटू 4 लिख सकते हैं हम, और फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ये हमने यहाँ फैक्टराइज कर दिया। इसे मैं भी रहने देती हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब आपको आता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। ये किसका फैक्टराइजेशन है? 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड का। इसे और क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। अब मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, आपको समझ में आता है। 27 x4 y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? 3 इंटू 9 और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये क्या है? 3 का क्यूब आ गया है आपको। मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 का क्यूब। इसको मैं, चूंकि ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे इसको x4 या मैं इसी फॉर्मेट में रखती हूँ, y स्क्वायर और इंटू z स्क्वायर। अब देखो मुझे इसमें निकालना है एलसीएम। अब आपको पता है ना कि एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट होता है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 का हाईएस्ट क्या आ गया? 2 का पावर 3। 3 का हाईएस्ट क्या आ गया? 3 का पावर 3। x का हाईएस्ट क्या है? तो x का पावर 4। y का हाईएस्ट क्या है? तो y का पावर 2, और z का हाईएस्ट क्या है? तो z का पावर 2। यहाँ पर जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट हमारी जो पावर है उसको हम लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ x4 y स्क्वायर z स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो। टू 32 x4 y square z square. Check the answer. What is the answer? एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करेक्ट शायद नहीं है। 27 and 8, 216. This is 216 x4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है। आप जब एलसीएम निकाल रहे हो, अब देखो मैं इसी में आपको एचसीएफ भी सिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर देखो इसका एचसीएफ सिखाती हूँ। अगर हम एचसीएफ निकालते तो देखो दोनों में कॉमन क्या था? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 3 कितनी बार है दोनों में कॉमन? 1 टाइम। x कितनी बार कॉमन है? 2 टाइम्स। y कितनी बार कॉमन है दोनों में? देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में सिंगल टाइम। तो ये हो गया इसका एचसीएफ।
दिस इज HCF एंड दिस इज LCM। वेरी इजी। हम बचपन में इसको नंबर में करते थे छोटी क्लासेस में, और यहाँ पर हम वेरिएबल के साथ कर रहे हैं। दिस मीन्स दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। सो दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट का, ये फर्स्ट है, आप एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। मैं इसका कोई एक बड़ा बता देती हूँ आपको। एक बार मैं इसका आपको फोर्थ बता देती हूँ। फोर्थ में फैक्टराइज करके बनाना है। फोर्थ बता दूंगी तो आप सेकंड और थर्ड भी बना लोगे। या आप ही बताओ, आप लोग कौन सा बता दूं, क्योंकि अब टाइम कम है आपके पास, 4 मिनट ओनली रेस्ट रह रहा है। ये रिलेशन आपने नोट डाउन कर लिया है ना? कौन सा बता दूं बच्चों, आप लोग ही बोलो। आप बताओ कौन सा बताऊं, फर्स्ट का, फर्स्ट फोर्थ। ओके, देखो फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट के फोर्थ में देखो 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है x² - 1, दूसरा है मेरे पास x² + 1, तीसरा है मेरे पास x + 1, और चौथा है मेरे पास, जो फोर्थ वन है वो है हमारे पास x² + x - 1। दीज आर द 4 टर्म्स, और हमें इसका LCM फाइंड करना है। मैं यहाँ पर LCM ही आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ LCM ही फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। बच्चों एक बार वापस चेक कर लेते हैं। x² - 1, x² + 1, x + 1 एंड दिस। अब देखो एक एक करके, अब यहाँ पे फैक्टर्स निकलेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स अलग अलग निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल और वेरिएबल नहीं है। सबसे पहले मैं उठाती हूँ x² - 1 को। देखो ये तो इजी है, आइडेंटिटी है a + b एंड a - b। अब उठा लो x² + 1 को। क्या ये कोई आइडेंटिटी है x² + 1? इट इज एनी आइडेंटिटी x² + 1? सेकेंड टर्म नहीं, ये पूरा ही सेकेंड टर्म है बच्चों। ये 3 टर्म्स हैं, x² + 1 एंड x + 1। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, x² + 1 एंड x + 1। अब थर्ड वन पर आ जाओ। तीसरा हमारा है x² + x - 1। अब ध्यान से देखो, क्या कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनको अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो ब्रेक करने के बाद मुझे ये मिल जाए प्लस का 1 और माइनस का 1। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसको अगर तुम ब्रेक करोगे, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 1 ले लूं, तो कॉमन दोनों में सेम नहीं आएगा, मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा। मैं इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देती हूँ। अब मुझे इसमें निकालना है सबका LCM, ठीक है ना? मुझे सबका LCM निकालना है। अब ध्यान से देखो, पहला टर्म और दूसरे टर्म को देखो, सारे टर्म आ जाने चाहिए सब में। तो पहले तो हमारा आ जाएगा x + 1 और क्या आ जाएगा x - 1। फिर क्या आ जाएगा x² + 1, ये वाला टर्म इसके साथ आ चुका है, और फिर ये आ जाएगा x² + x - 1। अब देखो ये दोनों एक अगेन आइडेंटिटी बन गई है, a² - b², a² - b², और ये है a² + b। अब या तो आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दो, और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा x4 - 1, और ये बन जाएगा x² - x, x² + x - 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी है ये, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे जो भी हमें गिवन होता है उस गिवन के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। वापस से बताना है बच्चों, या आ गया समझ में सबको? फिर से बताना है या आ गया आपको समझ में? सोनू डन, गुड, ओके। अब आपका आज का होमवर्क है, आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में क्या है हमारे पास, फाइंड द HCF। आप सेकंड भी ट्राई करोगे, क्वेश्चन 1 एंड सेकंड, और जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे। जो आपसे नहीं बनेगा, HCF भी आपको सिखा दी हूँ मैं बनाना, और LCM भी सिखा दी हूँ। ओके,
If you have not done, if you have any problem, then ask me in next class. Okay, children.